بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے آپ سب کا استقبال ہے میرا یوٹیوب چینل اردو گھنس میں، اور میں آج پھر آپ کے پاس درخشاں کا پہلا چیپٹر، کلاس 10 کی اردو درخشاں سے پہلا چیپٹر، پہلا سبق حمد، اس کا خلاصہ لے کر آئے ہیں۔ اور اس سے قبل آپ حمد کے بارے میں جان لیں۔ حمد کسے کہا جاتا ہے؟ حمد کے لغوی معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ حمد میں ہوتا کیا ہے؟ خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے، خدا کی عظمت و جاہ و جلال کا بیان ہوتا ہے، خدا کی ستائش بیان کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، آئیے ہم حمد کا خلاصہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ جو حمد خدا عز و جل ہے، یہ خلاصہ ہم نے لکھ رکھا ہے کلاس 10 کی اردو حمد، خدا عز و جل، جو پہلا سبق ہے آپ کا، اس میں کیا ہے، ہم اس کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ طویل سوال میں کبھی کبھی یہ سوال آ جاتا ہے کہ حمد کا خلاصہ لکھیں۔ اسی طریقے سے آپ کو کہا جائے گا کہ نظم مناظر قدرت کا خلاصہ لکھیے، یا پھر دوسری کوئی کہانی یا افسانہ یا مضمون کا خلاصہ لکھنے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ حمد کا خلاصہ اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے بورڈ امتحان میں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے لیے کیوں نہ حمد کا خلاصہ بالتفصیل سمجھایا جائے۔ اور یہ جو میں نے لکھا ہے بالکل شارٹ میں سمجھانے کی کوشش کیا ہے۔ ایک ایک لفظ کو سنیے، اسکپ نہیں کیجیے گا ویڈیو کو، اور یہ نہیں سمجھیے گا کہ اسکرین شاٹ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب تک آپ مکمل طور پر ویڈیو کو پورا دیکھیں گے نہیں، تب تک سمجھنے میں آپ کو دقت ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ خلاصہ کس چیز کا خلاصہ ہے؟ حمد خدا عز و جل، یعنی ہمارے نصاب میں جو شامل ہے پہلا چیپٹر، پہلا سبق کا جو حمد ہے، اس کا خلاصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ زیر نصاب حمد میں خدا کی بارگاہ میں، یعنی زیر نصاب جو ہمارے سلیبس کی کتاب میں جو حمد ہے، اس میں خدا کی بارگاہ میں یعنی خدا کے دربار میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ یعنی اس حمد میں جب آپ پڑھیں گے، آپ حمد کو لائن بائی لائن پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہوگا تو اس میں بس یہی بات ہے، خدا کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی زیر نصاب حمد میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں۔ خالق کائنات کا مطلب کیا ہوا؟ خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ اچھا، جس میں والا کا معنی پایا جائے اس کو قواعد کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ اس کو اسم فاعل کہیں گے۔ فعل فاعل مفعول آپ نے پڑھا ہوگا، سبجیکٹ آبجیکٹ، اسی طریقے سے جو ہے آپ کو بھرب، اگر اس کو ہندی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کریا ہے، کرتا ہے، کرم ہے۔ تو یہ جو کائنات خالق، یہ خالق کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پیدا کرنے والا۔ اور ہم سب پوری دنیا کی مخلوقات یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ مخلوق یہ اسم مفعول ہو جائے گا، اور فاعل کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو بہرحال وہ قواعد کی بات تھی۔ اب یہ جانیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خالق کائنات یعنی اس برہمان کو، پوری دنیا کو، آسمان و زمین کو اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یاد رکھیے، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، تخلیق کا معنی پیدا کرنا، پیدا۔ تو خالق کائنات کی ستائش کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ ایک آپ یوں نہ سمجھ لیں 27 جو گنتی کے اعتبار سے 26 کے بعد 27 آتا ہے، اگر وہ 27 لکھیں گے اس میں بڑی شین آخر میں نہیں ہوگی، وہ چھوٹی سین سے 27 لکھا جائے گا۔ لیکن یہ بڑی شین سے 27 ہے، جس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تعریف کے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ خالق کائنات کی ستائش یعنی اس کی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات کو اگر بیان کرنے کے لیے پوری دنیا میں جتنے سمندر ہے، تمام سمندر کے پانی کو روشنی بنا لیا جائے، اور تمام پیڑ پودے جتنے دنیا میں ہے، تمام پیڑ پودے کی لکڑیوں کو، پیڑوں کو قلم بنا لیا جائے، اور اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی خوبیوں کو اگر بیان کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا، اس انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ بڑھیا ڈھنگ سے اگر اس کو بڑھیا ڈھنگ سے یاد کر لیتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے یاد کر لیتے ہیں، اور اس کو 2-3 بار، عزیز طلبہ میں آپ سے یہ کہوں گا، جیسے میں نے یہاں لکھا
आखिर में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब आपको बात समझ में आ गई, और उसको जो है ना अपने कॉपी में 2-4 बार ज़रूर नोट कीजिए, बार बार देख के लिखिए। जब आपको लगा कि नहीं मुझे लिखना आ गया, कुछ याद कर लीजिए, फिर उसके बाद कॉपी को बंद करके दूसरी कॉपी में जहाँ लिखा हुआ उससे दूसरी जगह आप जो है 2-4 बार रिवाइज कीजिए। उस तरीके से क्या होगा कि हम्द का खुलासा आपका यानी याद भी हो जाएगा, और लिखने में जो गलतियाँ होंगी उसको बाद में मिलाकर आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। तो पता ये चला कि खुदा की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी सिफ़ात बयान करना अल्फाज में मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी शायर जो है, शायर कौन है? हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल के शायर कौन है? शबनम कमाली है, जो बहुत मशहूर मारूफ है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। वो कहाँ पैदा हुए थे? पोखरा जिला सीतामढ़ी में। कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई 1938 में। वो तमाम तर तफसीलात भी मेरे यूट्यूब चैनल के जो है प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए, फिर भी क्या होता है कि शायर इस बात की कोशिश करते हैं, यानी बंदा से मुराद यहाँ शायर है या फिर हम इंसान भी हैं, हम इंसान ये कोशिश करते हैं, इस बात की कोशिश करता है कि उसकी हम्द व सताइश में कोई कमी ना रह जाए। किसकी हम्द व सताइश में? हम्द का माने तारीफ, सताइश का माने तारीफ। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे कर डालता हूँ कि अगर हम माना अल्फाज हो, एक जैसा माना देने वाला अल्फाज को क्या कहा जाता है? मुतरादिफ कहा जाता है या मुतजाद कहा जाता है? अगर एक जैसे माना देने वाले अल्फाज हैं तो वैसे अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जिसलिए अगर आपसे सवाल किया जाए, अगर आपको याद आ रहा है तो फ़ौरन जो है कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके हम्द व सताइश में मतलब अल्लाह ताला की तारीफ में कोई कमी ना रह जाए। एक शायर होने के नाते, कि बंदा होने के नाते, कि जो है मखलूक होने के नाते हर इंसान को चाहिए कि खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ करते रहे। अगर कहीं बात करने की बारी आए, कहीं 10 आदमी को समझाने की बारी आए, तो सबसे पहले जो है खुदा का नाम लेना चाहिए। और खुदा का नाम लिया भी जाता है। क्यों लिया जाता है? इसलिए कि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना क्या समझा जाता है? मुतबरक समझा जाता है। मुतबरक का मतलब हो गया बाबरकत, यानी बरकत वाला समझा जाता है। उसकी देखिए उसी का खुलासा है कि अल्लाह दोनों जहां का खालिक है, यानी उसकी हम्द व सताइश में कोई कमी ना रह जाए। अल्लाह दोनों जहां का खालिक है। दोनों जहां का मतलब क्या हो गया? दुनिया व आखिरत। अच्छा, दुनिया व आखिरत, तो दुनिया की ज़िद क्या है? आपसे ये सवाल हो सकता है, कभी कोई पूछ रहे थे दुनिया की ज़िद क्या है, तो आपको बताना है आखिरत। आखिरत की ज़िद यानी उसका उल्टा क्या है? तो दुनिया। तो अल्लाह तबारक तआला जो है दोनों जहां का खालिक है। उसकी ज़ात पाक है, बिल्कुल पाक व साफ है। उसकी ज़ात में कोई मिलावट नहीं है। उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती है। उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की कोई दूसरी मिसाल अगर इंसान देना चाहे तो बिल्कुल नहीं। वहदहू ला शरीक है। अल्लाह क्या है? वहदहू ला शरीक है। उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता है। दोनों जहां को अल्लाह ताला ही रिस्क पहुंचाता है। रिस्क देता है कौन? अल्लाह। खिलाता कौन? अल्लाह। जिलाता कौन है? अल्लाह ताला। मारता कौन है? अल्लाह ताला। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए शायर ने कहा कि दोनों जहां को अल्लाह ताला ही रिस्क देता है या पहुंचाता है। हयात और मौत का मालिक वही है। कौन? अल्लाह ताला। हयात का माने जिंदगी, मौत का माने मौत, विसाल। तो ये दोनों मुतजाद हैं और ये दोनों क्या है? मुतरादिफ अल्फाज हैं। हम्द का माने तारीफ, 27 का माने तारीफ। तो ये मुतरादिफ यानी एक जैसा माना देने वाले अल्फाज को मुतरादिफ कहेंगे। लेकिन यहाँ हयात का माने जिंदगी, मौत का माने मौत, तो ये दोनों अलग अलग माने देने वाले अल्फाज हैं। इसको कहेंगे मुतजाद अल्फाज। क्या कहेंगे? इसको यहाँ मुतजाद अल्फाज कहेंगे। क्या कहेंगे? मुतजाद अल्फाज। इसी तरीके से हम्द व सताइश को क्या कहा जाएगा? इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हयात व मौत यानी मुतजाद अल्फाज हैं, उल्टा है। तो हयात व मौत का मालिक कौन है? वही है। वही से मुराद क्या है? ये इसमें इशारा किसके तरफ है? वही से मुराद अल्लाह ताला है। पूरी दुनिया में चारों तरफ, पूरी दुनिया में कूबकू हर तरफ चारों तरफ उसी का जलवा नजर आता है। उसी का
जलवा नज़र आता है, उसी की आज़मत नज़र आती है। ज़िंदगी का सारा निज़ाम उसी ने मुरतब किया है। आखिर में शायर जो है अल्लाह से ये दुआ मांगता है, ए अल्लाह शबनमे बेनवा को भी दे दे ज़िंदगी, ये शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी। यानी शबनम कमाली जो आपका हम इस हमद का शायर है वो कह रहे हैं कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, कि दुनिया के क्या है, दुनिया के जाहो जलाल को पाने के लिए पायमाल हो रहा है, दुनिया की अज़मत को पाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, पेट भरने के लिए और दुनिया में इज्जत पाने के लिए जो है पायमाल हो रहा है दुनिया है खेत है, पेट के चक्कर में जो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। या अल्लाह मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ कि हमारी बंदगी में, आपकी इबादत में मुझे उरूज यानी तरक्की दे दे। ये शायर आखिर में जाके कहा जाता है, कहता है। तो बहरहाल आप अगर इतनी चीज़ अगर याद रख लेते हैं तो अजीज़ तरह मुझे खूब भरोसा है कि आप इस हम्द का खुलासा मुकम्मल तौर पर कर देंगे। और मैंने सलीस ज़बान में बिल्कुल आम फहम सवाल में समझाने की कोशिश की है। फिर एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में, नोटबुक में जो है फेयर कॉपी में उतार कर 2-4 बार मश्क कर लीजिए रफ कॉपी में, उसके बाद फेयर कॉपी में उतार लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्लास 10 की उर्दू का पहला चैप्टर जो है उसका सबक है क्या है, हम्द है। हम्द के मानी लग़वी, हम्द के लग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरे इस्लाम की तरह हम्द भी एक मकबूल सिर्फ है। उसी हम्द का खुलासा आपके सामने पेश किया गया। क्या है हम्द का उन्वान है हम्द खुदा अज़्ज़ वजल। इसके मुसन्निफ़ कौन है, शबनम कमाली इसके मुसन्निफ़ है। अच्छा, अब शबनम कमाली का असल नाम क्या है तो मुस्तफ़ा रज़ा है, वो अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आइए देखिए, ज़ेर निसाब हम्द में खुदा की बारगाह में यानी खुदा के दरबार में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार है। हम ये जानते हैं कि खालिक कायनात की सताइश यानी उसकी तारीफ़, खालिक का मानी पैदा करने वाला, सताइश यानी तारीफ़ अल्फाज में मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी बंदा इस बात की कोशिश करता है कि उसकी हम्दो सताइश में कोई कमी न रह जाए। यानी शायर इस बात की हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसकी हम्दो सताइश मतलब उसकी तारीफ़, हम्दो सताइश के बारे में मैंने क्या बताया, ये मुतरादिफ अल्फाज है। हम्द का मानी तारीफ़, सताइश का मानी भी तारीफ़, कोई कमी न रह जाए। अल्लाह दोनों जहां का खालिक है, खालिक का मानी पैदा करने वाला, और जिस लफ्ज़ में वाला का मानी पैदा हो जाए पाया जाए तो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें फ़ाइल हो जाएगा। उसकी ज़ात पाक है। किसकी ज़ात पाक है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। ये इसमें ज़मीर हो जाएगा उसकी ज़ात, उसकी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह ताला के लिए। उसकी दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती, यानी अल्लाह ताला की दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। दोनों जहां को अल्लाह ताला ही रिस्क देता है, यानी दोनों जहां से बड़ा दुनिया व आखिरत को कौन रिस्क देता है, कौन खिलाता है पिलाता है, अल्लाह ताला ही खिलाता पिलाता है, रिस्क देता है, रिस्क पहुँचाता है। हयात व मौत ये मुतरादिफ नहीं, ये बल्कि क्या है, मुतज़ाद। देखिए हयात का मानी ज़िंदगी, मौत का मानी मौत, तो ये इसका मानी अलग हो गया, इसका मानी अलग हो गया। अगर दो अलग अलग मानी के लफ्ज़ हैं तो समझ जाइए कि वो मुतज़ाद है। हयात और मौत का मालिक वही है, वही से मुराद कौन है, अल्लाह ताला। पूरी दुनिया में चारों तरफ कू बकू हर तरफ चारों तरफ उसी का जलवा नज़र आता है। किसका, अल्लाह ताला का। ज़िंदगी का सारा निज़ाम उसी ने मुरतब किया। अजीज़ तलबा, आपसे दरख्वास्त है इस चैप्टर का जो खुलासा लिखाया गया है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने रफ कॉपी में बार बार लिखिए, उसके बाद फेयर कॉपी में लिखिए और बढ़िया ढंग से याद कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर दिन इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आपके लिए मैं उर्दू में स्पेशल उर्दू में जो है बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर आऊँगा, और इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।